कितने बजे शुरू करना है सर? शुरू करा दो सर, 130 तो हो गए। 130 हो गए सर, शुरू कर देते हैं। I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle. Today's webinar on various compliances under GST. As you know that due to COVID, certain compliances are left and could not be completed. So we have decided to keep this webinar on this subject, whether the returns for the March ending and April, May, we have to file, whether date has been extended. अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो। Subject we have with us our star speakers ये वीरेंद्र चौहान जी. He is a senior partner of Messrs ABC and Company, chartered accountant since 1987. He is a special invitee to Indirectors Committee of ICI for several years. He delivered so many lectures and written articles both on national and international level. He also authored books on VAT and GST. He is not a new to our study circle and to member. This is the brief profile. With this, I once again welcome Chauhan sir, and over to Chauhan ji. My great pleasure, sir. At the outset, I extend my thanks to the Pusa Road Study Circle and specifically Radhe Rajesh Agrawal ji, who is always kind to me to elevate my standard. He invites me at such a learned gathering, and at the same time, Kohli ji also is a great motivator, and he possesses a very good knowledge, and he is now, I can say, has devoted himself into the service of our profession. And this is the dream of everyone, but I understand that most of the people want many things in life, but they rarely able to achieve that level. So both Rajesh Agrawal and Kohli Saab have achieved that level, and they have put themselves into the service through this Pusa Road Study Circle, into the service of the profession. Satish Goyal ji is always kind to many members, and he has also been instrument for a long time. Hello, Jagdish Singh ji just. So he is also kind enough for the members to impart services. मैंने देखा है कि राजेश जी, कोहली साहब और सतीश गोयल जी की लाइफ क्या है कि वो मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करके और खुद बैकग्राउंड में बैठ जाते हैं. Let the members float into the river and they attain moksha, and they are now the real service provider to the members at large. कंप्लीट नॉर्दर्न रीजन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर उस पीपीटी को भेजते हैं, स्पीकर से कैसे इंटरेक्शन करते हैं और कितनी बार करते हैं, ये सब तारीफे काबिल है. मतलब मुझे पता होता है कि अभी राजेश जी का फोन आने वाला है, तो वो फोन आ जाता है. So this is something very kind. It shows your nature of heart, and this really impresses us. और हम स्पीकर्स की पता है क्या हालत है सतीश जी? हाँ जी सर. आजकल ना तो वो माला मिल रही है, ना वो मोमेंटो मिल रहा है, ना वो फोटो खींच रहा है, और तो और क्या मैं आपको बताऊं, चाय भी बाजार में जाके पीनी पड़ती है. बाजार में तो आजकल चाय पीते नहीं सर. मैं वही कहना चाह रहा था इससे आगे कि बाजार की चाय हम पीते नहीं है, घर से ही सब रेडी करके रखनी पड़ती है. सर वो कुरुक्षेत्र से इंद्रप्रस्थ में सब नजर आ रहा है, तो आपको पूरे नॉर्थ इंडिया के पूरे इंडिया में नजर आ रहे हो, तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं आपके. तो these are the things which we are experiencing. So COVID is a time when an automatic law of the Supreme Court applies, that in situations which are beyond the control of a human being, any kind of compliance gets adjourned. जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन में एक रूल है कि इफ द लास्ट डेट इज संडे एंड दैट इज हॉलीडे, so that date automatically get extended to the next date. लॉ मेकर्स ने अपनी तरफ से बहुत सारे राइडर्स लगाने की कोशिश किए हैं, नोटिफिकेशन लाके
कि इन चीजों में छूट नहीं मिलेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि वो नोटिफिकेशन भी कल को कोर्ट में जाएगा तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने 8-10 एक्सेप्शंस दिए हैं कि इन चीजों पे कोई छूट नहीं मिलेगी, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट अपनी तरफ से 200% प्रयास कर रही है सब कुछ करने की, लेकिन गवर्नमेंट की पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि वो जितना चाहती है उतना कर दे। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ हम लोगों को थोड़ा सा मौका मिलता है काम करने का। जीएसटीएन के साथ हम जब से जीएसटीएन बनाए तब से अब तक काम कर रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस हमें पता है, हाउ मच हार्ड वर्क दे आर पुटिंग इन, दैट वी आर लुकिंग एट। सिमिलरली वी आर लुकिंग एट विद द सीबीआईसी ऑफिशियल्स। ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिछले समझ लो कि 10 साल में एक छुट्टी नहीं की है, और ऐसे बहुत ऑफिसर्स हैं जो सैटरडे संडे भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी काबू में नहीं आ रहा। उस पूरे प्रोसेस में हमें यह पता लगता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियली कितनी टाइट पोजीशन होती है। यानी कि अगर 20 तारीख को हम जीएसटीआर 3B ना भरें तो गवर्नमेंट को ये रहता है कि 31 तारीख को 30 तारीख को सैलरी कहां से देंगे, और उनके पास ऐसी लीवरेज नहीं होती है कि चलो अगर अपने बैंक में पैसा नहीं है तो आरबीआई से ले लिया, प्राइम मिनिस्टर फंड से ले लिया, बड़े भाई से मांग लिया, छोटे भाई से मांग लिया। दोज आर ऑल्सो वेरी बिग लिमिटेशंस। इवन गवर्नमेंट व्हेन गोज फॉर सीकिंग लोन from some banking or other institution, those also takes long formalities. Like it's not easy कि यार हम जैसे कोविड में क्या करते हैं कि फर्म में पैसा नहीं है तो इंडिविजुअल से सैलरी दे देते हैं, तो गवर्नमेंट्स की लिमिटेशंस बहुत स्ट्रांग है। आप देखेंगे कि इस पूरे कोविड के पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया कि रिटर्न लेट फाइल करोगे तो लेट फीस नहीं लगाएंगे, वो 100 रुपए पर डे वाली। उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि अगर आपने 24 जून से पहले रिटर्न फाइल नहीं करी तो लेट फीस लग जाएगी। 30 जून से पहले रिटर्न फाइल नहीं करी जीएसटीआर 1 तो लेट फीस लग जाएगी। इंटरेस्ट में उन्होंने क्या वेवर दिया है, मेनली जो लार्ज 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, कि अगर आपने 24 जून तक रिटर्न फाइल नहीं की तो 18% इंटरेस्ट लग जाएगा, और अगर 24 जून से पहले रिटर्न फाइल कर दी तो 9% लगेगा। यानी कि उसमें भी कंप्लीट वेवर नहीं है। गवर्नमेंट इस बात से बिल्कुल उनकी नॉलेज में है कि बिजनेस मैन का जो है आज की डेट में बैंड बजा हुआ है, ऑफिस बंद हैं, फाइनेंशियल स्क्वीज है, इवन जो पोस्ट डेटेड चेक्स आए हुए थे वो अबेंडन हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो गवर्नमेंट को रिलीफ कैसे देना चाहिए? मैंने सुना है हरियाणा गवर्नमेंट ने जिन लोगों ने एसजीएसटी जमा कराया पर्टिकुलर पीरियड में उसका 70% रिफंड ले लो गवर्नमेंट से, ये होता है रिलीफ। बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट डन सो, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट डन सो, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में फाइनेंशियल नहीं होता है। और हमने 5-6 दूसरे कंट्रीज की भी स्टडी की है, मतलब हमने वहां जाके स्टडी की है, जैसे हमने यूके की स्टडी की, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज की स्टडी की, इंडोनेशिया की इवन दुबई की। वहां की भी गवर्नमेंट्स के पास डेफिसिट होता है। हो सकता है कि वहां के सुल्तान के पास इतना पैसा हो कि वो 3 दुबई और खरीद सकता है, बट एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न दैट रिमेन्स इन डेफिसिट। तो उस पूरे प्रोसेस में हमें अपना माइंडसेट ये करना है कि हमें गवर्नमेंट से अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके उसको वाइस वर्सा करना है। वाइस वर्सा इन द सेंस कि यार हम क्यों लें गवर्नमेंट से, क्यों दें, क्यों नहीं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को कुछ दें क्राइसिस के अंदर। हमारी गवर्नमेंट जो आज मल्टीपल क्राइसिस में है उसमें अगर हर सिटीजन, हर बिजनेसमैन, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, गरीब हो या अमीर हो, हर एक आदमी अगर हाथ ही फैलाएगा तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली भूखी नंगी हो जाएगी।
हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में काफी पैसा आ रहा है, एसपीबीए बहुत काम कर रही है, आईसीआई बहुत काम कर रहा है, और काफी अच्छा पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर आ रहा है. आई एम नॉट ridiculing anyone, but our mindset should be so that why should I expect a notification in which I may be granted some benefit by the government? It should be other way around. अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट जो ये डेडलाइंस नहीं बढ़ा पाती है, जैसे मान लो आज 24 जून लास्ट डेट है, अभी हम आइटम वाई आइटम पीपीटी के थ्रू उनको स्टडी करेंगे. 24 जून तक हमें सारी कंप्लायंसेस करने, और अभी ऑफिस जो है खोलते हुए सभी बिजनेसमैन और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मन अभी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो नंबर का स्पर्ट है वो पहले से भी ज्यादा है. रिस्क लेवल अभी कम नहीं हुआ है. पहले तो 500 का आंकड़ा बहुत बड़ा लगता था, अब 10,000 हो गया आंकड़ा. तो इतना बड़ा आंकड़ा होने के बाद, और जो अभी मैंने सुना है कि बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं दिल्ली के, उससे जो बाहर के पेशेंट दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली में प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक्चुअल में स्थान नहीं मिलेगा. और जो सर्कल में कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं, जो भुगत भोगी हैं, अभी भी बहुत पैथेटिक सिचुएशन. और जब ये बॉर्डर खुल जाएगा, जैसे सुना आज से खुल गया है, तो और सिचुएशन वर्स हो जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपनी रिमोट वर्किंग से, होम वर्किंग से जितना कुछ कर सकते हैं वो करें. और नहीं हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, लॉ हमारे साथ हैं, जुडिशियल अथॉरिटीज हमारे साथ हैं. किसी प्रकार के कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे. ना आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत है और ना ही आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत. लेकिन हमारे जो ड्यूज हैं वो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल जमा करा दें. प्रोफेशनल्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्योंकि हम एक कड़ी हैं बिजनेसमैन के और डिपार्टमेंट के बीच में, और बिजनेसमैन हमारे ऊपर बहुत अधिक भरोसा करता है, हमारा रिगार्ड करता है, और हमारी नॉलेज का भी रिगार्ड करता है, और हमें फीस भी देता है. और बिजनेसमैन का ये हक है कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे. उसके रिटर्न्स फाइल करने के लिए हमें अपने यहाँ पे जूम के थ्रू या किसी भी और वीसी के थ्रू उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए. उसको एक कम्युनिकेशन देनी चाहिए कि भाई ये रिकॉर्ड्स टैली या जो भी कोई सॉफ्टवेयर तो मेंटेन करते हैं उसका डाटा दो, हम आपकी रिटर्न्स तैयार कर देते हैं. और जो रिटर्न अभी हम फाइल करेंगे उनको हम सितंबर तक रिवाइज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं. वो किस हद तक हम वो कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं कि हम रिवीजन के लेवल पे जाएं, वो केस टू केस डिपेंड करता है. तो अभी अगर सुशांत या कोमल कोई हो तो जरा वो पीपीटी ओपन करें, और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस किस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे. मैं एक सेकंड. विनीत भाई, केशव जी, एडमिन जो है उनको एक्सेस देंगे उनको पीपीटी चलाने का. कोमल और सुशांत ज्वाइन करे हुए हैं. ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने? हाँ, ज्वाइन किए हुए हैं. किस नाम से है सर उनका? कोमल के नाम से देखो. कोमल के नाम से, कोमल जैन. हैं? कोमल जैन, कोमल जैन. कोमल जैन, कोमल जैन. रुको, मैंने पैनल लिस्ट में ले लिया उनको, और अभी मैं उनको वो जरा बना देता हूँ. हाँ, अब शेयर कर लो. कोमल का वो भी दे दो, फोटोग्राफ भी दे दो, वीडियो. दे दिया मैंने, अपनी तरफ से दे दिया था. कोमल वीडियो ऑन कर लो, आगे वीडियो. ठीक है, डन डन. आप कर सकते हैं वो, कोमल जी कर सकते हैं. हाँ जी सर.
हेलो हाँ जी। चौहान साहब, चौहान साहब एक मिनट सीट छोड़ के उठे आना, एक मिनट अभी आ जाओ। जी जी सर राधे राधे सर, आज लेट हो गया था, आज अटेंड कर रहा था बट हो ही नहीं पा रहा था। सही बात है, सही बात है। कैसे सर? कुली सर, सतीश जी, गुड सर, आफ्टरनून। गुड, वेरी गुड आफ्टरनून। सतीश जी तबीयत ठीक है अब आपकी? तबीयत ठीक है। ग्रेट ग्रेट सर। अभी मैंने पिछले कई दिनों से कोई वेबिनार नहीं ज्वाइन की थी। आज पूरे हो जाएंगे सर, आज सारे कंप्लायंसेस आज हो जाने हैं सर। आज ही करने हैं सारे कंप्लायंसेस। कोई फोन आ गया, वो इसलिए चले गए, आ रहे हैं। आज मैं भी लेट हो गया, रोड पे काफी ट्रैफिक है आज। अच्छा जी। ट्रैफिक बहुत है। ये हमारी पीपीटी की बिगनिंग है। इसमें आप देख लो 30 कंप्लायंसेस इन 15 डेज। 24 जून तक हमें इंपोर्टेंट कंप्लायंसेस करनी है और आज 8 तारीख हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि 15 और 8 23, तो 15 डेज हमारे पास हैं और हमें अलग अलग किस्म की बहुत सारी कंप्लायंसेस करनी है। और ये कोमल ने बहुत सारा पैसों का भी ढेर लगा दिया है कि गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा चाहिए। We are committed to play our role in gathering money for the government. This is our sincere desire. क्योंकि अगर ऐसे मौके पे भी अगर हम वो नहीं होंगे ना, लिबरल टू द गवर्नमेंट और काइंड टू द गवर्नमेंट, तो फिर ये हमारे देश के हित में नहीं होगा। तो मैंने देखा है सेमिनार्स वगैरह में बहुत सारे मेंबर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ाए हुए हैं। तो वो माहौल को मैं नहीं समझता कि बेटर करते हैं, माहौल को खराब ही करते हैं। तो मैं बिल्कुल कॉन्ट्रेरी व्यू का आदमी हूँ और एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स आई कंट्रीब्यूट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड कोमल। आज हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, कंपोजिशन स्कीम, क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरियस रिकंसिलेशंस, ई-वे बिल्स, रिटर्न्स, टीडीएस और टीसीएस, ऑडिट, एक्सपोर्टर्स, रिफंड्स, जॉब वर्क, फाइलिंग ऑफ अपील, और एक NN35 है जो कि एक जनरल नोटिफिकेशन है जिसमें कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इस पीरियड में किसी की भी अगर कोई लास्ट डेट फॉल करती है तो दैट स्टैंड एक्सटेंडेड, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्सेप्शंस दे दी। हम उन एक्सेप्शंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दीज आर द ब्रॉडर 12 टॉपिक्स विच वी वुड बी डिस्कसिंग टुडे। और इन टॉपिक्स के अंदर हम ज्यादातर सिर्फ लिमिटेशन की डेट्स का जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी डेट्स इन पर्टिकुलर एरियाज में फॉल करती हैं ओरिजिनली, और जैसा कि राजेश जी ने मुझे गाइडेंस दी थी कि हमें एक ओरिजिनल डेट बतानी है पहले कि एक्चुअल डेट क्या थी गवर्नमेंट की एज पर लॉ, और उसको नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ा के कितनी किया गया। तो हमने ये डिमार्केशन हर स्लाइड में रखने की कोशिश की है ताकि मेंबर्स की क्लैरिटी हो जाए। और एक एक टॉपिक के बाद डिस्कशन करने के बाद अगर मेंबर्स का कोई भी क्वेश्चन है तो वो साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा ना हो कि हम 12 टॉपिक फिनिश कर दें और फिर मेंबर भूल जाएं कि हमने क्या सीखा है। तो वी विल बी कवरिंग ऑल द डाउट्स ऑफ द मेंबर्स एट द सेम टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग द वन टॉपिक। So let us begin with first topic, Komal, composition scheme. Next. कंपोजिशन स्कीम के 3 एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। वन इज कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं या मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना चाहता हूं, और या कंपोजिशन डीलर होते हुए मैं अपनी रिटर्न्स की कंप्लायंस करना चाहता हूं, ये 3 काम एट द मोस्ट कंपोजिशन का टैक्स पेयर करेगा। तो कंपोजिशन में ऑप्ट इन करने का क्या प्रोसेस होता है
कि मैं क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से पहले 31 मार्च 2020 से पहले एक CMP 02 फॉर्म भरता तो मैं 1/4/2020 से कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है। लेकिन लॉकडाउन हो गया तो जो मेरे को CMP 02 फॉर्म क्लोज ऑफ द ईयर से पहले भरना था उसकी जॉन डेट। सर, यस सर। काफी लोगों की मैसेज आ रहे हैं थोड़ा वॉइस स्लो होने की वजह से। अपना अच्छा, अगर वो लैपटॉप का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। अच्छा देखो अब फर्क पड़ा, थोड़ा सा बेटर तो हुआ। और बढ़ा देता हूं मैंने तो अब ये 96% हो गया। अब राइट बेटर है। सर, राइट सर। अब बेटर देखते हैं अभी मेंबर्स की फिर क्वेरी आती है तो। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। पुराना अभी ठीक है सर, मच सर कई बार के लोगों के पास ना इंटरनेट का इशू होता है तो उस वजह से क्लियर नहीं होती। क्लियर है आवाज मेरे हिसाब से तो क्लियर आ रही है। ओके सर। और अब मैंने जो वॉइस बढ़ाई है ना तो जो मेरे पास वॉइस आ रही है वो बहुत हाई हो गई। अब उससे मेरे ख्याल से उसको बढ़ाने से वो वॉइस आने वाली बढ़ती है, जाने वाली नहीं बढ़ती। एनी हाउ फिर भी मेंबर्स को कहीं क्लैरिटी नहीं हो तो दे कैन। सर आपकी वॉइस क्लियर है और पीपीटी भी क्लियर है। थैंक यू सर। तो ऑल डेट्स जो है एग्जिस्टिंग जो डेट है ओरिजिनल डेट कंपोजिशन की स्कीम में आने के लिए बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से पहले हमें एक फॉर्म भरना था CMP 02। वो हम नहीं भर पाए। उसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी। तो अभी भी कोई कंपोजिशन में करंट ईयर के लिए आना चाहता है तो उसके लिए विंडो ओपन है। उसके साथ साथ एक फॉर्म होता है GST ITC 03। इस फॉर्म का पर्पस क्या होता है कि जब हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके जो ITC होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि वो हमें गवर्नमेंट को पैसा जमा कराना पड़ता है। तो ITC 03 फॉर्म भर के वो पैसा हमें जमा कराना है, या तो क्रेडिट लेजर के थ्रू या कैश के थ्रू। उसकी डेट होती है फिर 60 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च और 29 अप्रैल 60 डेज 29 अप्रैल को पूरे होते हैं। इसमें लॉकडाउन हो गया तो गवर्नमेंट ने इस डेट को भी बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया है। तो नटशेल में ये कहने वाली बात है कि जिन टैक्स पेयर्स को कंपोजिशन स्कीम में आना है वो इस स्कीम का फायदा 30 जून तक उठा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर ऑप्ट आउट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। जो लोग कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं, कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए एक तो शो मोटो विड्रॉवल होती है कि जी मैं तो जाना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो वो एनी टाइम CMP 0 फॉर्म भरे और निकल जाए। दूसरी ऑप्शन है मैंडेटरी विड्रॉवल। आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर हो गई और अब आपको बाहर निकलना है तो आपको विद इन 7 डेज CMP 04 फॉर्म भरना है। तीसरी सिचुएशन है कि प्रॉपर ऑफिसर आपको ये कह रहा है कि भाई आपने कंडीशंस का वायोलेशन कर दिया। मान लो आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते और आपने इंटर स्टेट सेल कर दिया और ऑफिसर ने आपको CMP 05 देना था, तो ये भी एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें कि हमें मैंडेटरली बाहर आना पड़ता है। इस सिचुएशन में जब हम कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आते हैं तो हमें एक फॉर्म भरना होता है ITC 01। इस फॉर्म का पर्पज होता है कि हमारा जो स्टॉक है उस पे हमें ITC का बेनिफिट मिलेगा। तो ये जितनी भी कार्रवाई हैं ये सारी की सारी कार्रवाई अब हम NN35 का फायदा उठाते हुए, जिसका कि हम लास्ट में जिक्र करेंगे, ये काम हम 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राइडर क्या है कि अगर मान लो मैं 25 मार्च को 1.5 करोड़ मेरी पूरी हो गई और मुझे कंपोजिशन से बाहर आना है, नॉर्मल टैक्स पेयर मुझे बनना है, तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नॉर्मल रेट से एट द रेट ऑफ 18% 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, चाहे भले ही मैं CMP 04 30 जून को भरूं। इस तरह से लॉ को समझना है। तो इसको ये एडवांटेज ना समझ लें कि 30 जून तक मुझे 1% टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। तो टैक्स लायबिलिटी आपकी इमीडिएट चेंज हो जाएगी और कंप्लायंस का टाइम आपका 30 जून तक चला जाएगा। नेक्स्ट
रिटर्न्स कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की क्या स्कीम है कि कंपोजिशन स्कीम के डीलर्स को ओरिजिनली एक CMP 08 फॉर्म भरना होता है इंस्टीड ऑफ फॉर्म 3B, और ये फॉर्म मंथली जाता है और नहीं क्वार्टरली जाता है, और ये भरना होता है हमें विद इन 18 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। आप फर्ज करो कि हमारा क्वार्टर एंड हो रहा 4th क्वार्टर, तो 4th क्वार्टर का जो CMP 08 जाना था वो 18 अप्रैल तक जाना था। इसी तरह से इन्हीं कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है GSTR 04 में, उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल होती है। तो ये जो मॉडिफाइड अमेंडेड डेट्स हैं, एक्सटेंडेड डेट्स हैं, ये हो गई हैं CMP 04 कंपोजिशन टैक्स पेयर्स भर सकते हैं 7 जुलाई तक। और अगर उन्होंने 3B भरी हुई है, कुछ लोग जो सर्विस प्रोवाइडर थे NN2/2019 के अंदर, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, अगर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की थी तो उन लोगों के लिए कोई क्लियर प्रावधान नहीं था कि इनको CMP 8 भरना है या 3B भरना है। फर्ज करो उन्होंने 3B भर दिया, तो अब उनको CMP 08 भरने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के CMP 08 या 3B भरने की डेट 7 जुलाई कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए ऑन क्वार्टरली बेसिस, और GSTR 4 15 जुलाई एक्सटेंड हो गया है। ये रेलिवेंट नोटिफिकेशंस आगे हमने मेंशन किए हुए हैं, 2 NN21 और NN34। तो इन नोटिफिकेशंस के जरिए कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को ये रिलीफ मिला है। ये हमारा कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया है। यहाँ पे अगर किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसे हम पहले लेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। कोमल नेक्स्ट। सर ये 1920 की एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन की कि ये भी ऑप्शनल है, बाद में होगा? नहीं, जो कंपोजिशन डीलर्स के लिए एनुअल रिटर्न का हम जिक्र करेंगे वो हम बाद में करेंगे। नहीं, ये GSTR 4 जो है ये एनुअल रिटर्न है ना कंपोजिशन? नहीं, ये एनुअल रिटर्न नहीं है। हाँ जी, ये एनुअल GSTR 4 आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न है। जो रूल 44 के अंदर रिटर्न जाएगी, एनुअल रिटर्न जिसे बोलते हैं, वो अलग है। ये तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, इसको रिटर्न नहीं बोलेंगे। वो तो 9A होगा ना? वो 9A है। ये अर्लियर में भी ये GSTR 4 फाइल करना था कि ऑप्शनल था पहले? नहीं, ये मैंडेटरी था। पहले ये क्वार्टरली जाता था और बाद में इसको एनुअल कर दिया गया। और पहले जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स थे उनको क्वार्टरली कंप्लायंस करनी होती थी, अब उनको रिलैक्स करके ईयरली कर दिया है। तो आपको एक तो मंथली जो फॉर्म भरना है उसमें तो खाली आपको टैक्स देना है, जैसे 3B भरते हैं, उसका नाम उन्होंने CMP 08 कर दिया। तो CMP 08 के अंदर आपको आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स देना है, RCM पे टैक्स देना है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स देना है, सिर्फ टैक्स देना। वो एक पेज का फॉर्म है। वो 3B की जगह? हाँ, वो 3B की जगह हुआ है। वो क्वार्टरली भरना है आपको। और एनुअली आपको GSTR 4 बिल्कुल वैसा ही है जैसे GSTR 1 है, उसी लाइंस पे है मतलब। तो इसको हम बोलेंगे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज GSTR 4 को, और CMP 08 को बोलेंगे हम चलान। और जो 9A फॉर्म आएगा उसका जिक्र हम आगे जब एनुअल रिटर्न्स की बात आएगी तब करेंगे। उसकी डेट वही है अभी, जो 31 दिसंबर डेट होती है उसकी, अभी वही डेट है। उसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30 सितंबर 2020 कर दिया है। ठीक है, तो यहां तक कंपोजिशन स्कीम का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम ITC का जिक्र करते हैं। क्लेम ऑफ ITC में क्या अमेंडमेंट है, चलो आगे। कि एक रूल 36(4) इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि जो क्रेडिट GSTR 2A में नहीं आते हैं उसका हम क्रेडिट नहीं देंगे। इनिशियली उन्होंने इस लिमिट को 20% रखा, फिर उन्होंने इसको घटा के 10% कर दिया, और अब इस पीरियड के अंदर उन्होंने इसको NN30 के द्वारा ये कहा कि फरवरी से लेके अगस्त तक इस रूल को अप्लाई पोस्टपोन कर दिया जाता है। हटाया नहीं है, पोस्टपोन कर दिया। तो जब आप सितंबर की रिटर्न भरेंगे
तो सितंबर की रिटर्न में आपको फरवरी से अगस्त तक के भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो उनको चेक करना है कि क्या वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई करके रिवर्सल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने फरवरी से और अगस्त तक 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिया हुआ है और आपके 2A के अंदर 60 लाख आए फरवरी से अगस्त तक, तो 40 लाख रुपए का गैप रह गया। तो इस 40 लाख रुपए को गवर्नमेंट इसमें से कितना अलाउ करेगी? 10% ऑफ 60 लाख, यानी कि 6 लाख रुपए आपको और मिल जाएगा। बाकी जो बचा 34 लाख उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। इस रिवर्सल के ऊपर किसी प्रकार का इंटरेस्ट का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए रूल 36(4) can be said to have stand adjourned for the month of February to August till September 20। ये ITC के ऊपर हमारी प्रतिक्रिया है। इसमें अगर किसी भी मेंबर का क्वेश्चन है तो वो पूछूं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोमल, वेरियस रिकंसिलेशंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हम मेंबर्स लैक करते हैं। इसकी मैं सिग्निफिकेंस पहले बता देता हूं कि हम लोगों को सबसे पहले एक स्टैट्यूटरी ऑडिट या टैक्स ऑडिट करके ITR भरनी होती है से 30 सितंबर तक। फॉर एग्जांपल, लेट अस नॉट टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड डेट्स, बट 30 सितंबर तक हम एक ITR और ऑडिट कर देते हैं SSC का। और उसके अंदर एक कारों की रिपोर्ट भी होती है और फॉर्म 3B CD की भी काफी एक्सटेंडेड फॉर्मेट्स अब आ गए हैं। तो उन सारे कॉलम्स में हम ये एस्टेब्लिश कर देते हैं कि इस SSC की अब किसी भी प्रकार की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। लेकिन जब आगे दिसंबर या सब्सिक्वेंट पीरियड में, अभी तो देखो 18-19 की जो लास्ट डेट है ऑडिट की GST की, वो डेट हो गई है 30 सितंबर 20। तो सोचो कि जो अब 31/3/20 एंड होगा उसकी डेट क्या होगी। तो कुल मिला के GST ऑडिट कम से कम 2 साल लेट चल रहा है। तो हमने सितंबर 20 में ITR और ऑडिट कर दिया, टैक्स ऑडिट कर दिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर दिया, कारों की रिपोर्ट दे दी, और वो नॉर्मली हम नील रिपोर्ट देते हैं। कोई इसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन उसमें नहीं है, एंड दैट इज अंडर आवर सिग्नेचर। अब 2 साल के बाद जब हम GST ऑडिट करने बैठते हैं तब हमें बहुत सारे डेविएशंस मिलते हैं और फिर वो हमें रिपोर्ट करने होते हैं। तो एक टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि इस साल में इस टैक्स पेयर की कोई लायबिलिटी नहीं है, और एक साल के बाद मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लायबिलिटी है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, आगे बढ़ो। अब जब हम मार्च की रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 1 और GSTR 3B, इनको फाइल करते वक्त हमें इन क्वेश्चंस का रिप्लाई चाहिए SSC से, और हैंड टू हैंड हम वर्क करने को तैयार हैं। दोनों ने मिलके क्या करना है, वेदर द GTO डिक्लेयर्ड इन ऑल द GST रिटर्न्स GSTR 1 फाइल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 मैचेस विद दैट ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि आज ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको अपनी GSTR 1 के टोटल से बिल्कुल मैच करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी प्रकार का डेविएशन इनवाइट करेगा SSC के अगेंस्ट ऑडिट या असेसमेंट। जब तक हम इस ऑडिट को करेंगे तब तक 100% हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीडियो ऑडिट और वीडियो असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे आप आज हम ये जूम की मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही असेसिंग ऑफिसर्स हमारे से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि आप फाइल को जूम पे दिखाओ और फिर हम आपका असेसमेंट करेंगे, ये जो डिफरेंस है इसे एक्सप्लेन करो। तो इस समय के लिए हमें तैयार रहना है। कस्टम्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट का प्रावधान ऑलरेडी आ चुका है अभी 5 जून को, और बहुत जल्दी वो रेप्लिका हो जाएगा GST के अंदर। इसलिए अभी गवर्नमेंट सिर्फ अपनी बैंडविड्थ तैयार कर रही है, अदरवाइज उन्होंने मन बना लिया है कि हमें आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है। और टेक्नोलॉजी का जब फायदा उठेगा तो नंबर ऑफ असेसमेंट, नंबर ऑफ ऑडिट और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज सर्टेनली राइज होंगी और हम सब मेंबर्स का फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
whether the GTO declared in all the GST returns, GSTR1, once again, filed for the financial year 2019-20 matches with that of e-way bills issued during the year. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ज्यादातर जो लार्ज कंपनीज हैं वो हर किसी सप्लाई का ई-वे बिल जनरेट करती हैं, चाहे वो सप्लाई 10,000 की हो, चाहे 50,000 की हो, 1 लाख की हो या 10 लाख की हो। उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है, हर सप्लाई का ई-वे बिल कटेगा, चाहे वो ब्रांच ट्रांसफर हो या कुछ भी हो। तो ये रिकंसिलेशन भी इसी स्टेज पे कर लेना अति आवश्यक है, ताकि हम किसी भी प्रकार का जो रेमेडियल एक्शन है वो इस मार्च की रिटर्न के अंदर ले सकें। हमें कोई रिवर्सल करना पड़ रहा हो या कोई एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी जमा करानी पड़ रही हो, तो वो सब हम इसमें करके और अपना टकाटक, जैसे ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल मिल जाता है, ऐसे ही GSTR1, GSTR3B वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसे मैच कर देंगे ताकि 9 और 9C ऑडिट वगैरह कल को हमारे बिल्कुल क्लीन जाए। आगे बढ़ो। Whether the credits of ITC reflecting in Form GSTR2A matches with that of being claimed by us in all the returns filed in Form GSTR3B। तो ये जो रूल 36 सब रूल 4 आया है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आने वाला है कि गवर्नमेंट अब इस बात को ब्लैक एंड व्हाइट में लिख चुकी है कि फर्स्ट फंड देन रिफंड, यानी कि हमें क्रेडिट भी तभी मिलेगा जब वो 2A में आ जाएगा, हमें एक्सपोर्टर्स को रिफंड भी तब मिलेगा जब वो 2A में आ जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड तब मिलेगा जब वो 2A में आ जाएगा। गवर्नमेंट अभी उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ रही है। आने वाले टाइम में उन्होंने ये कहा कि हम अब इस बात के लिए डिटरमाइंड हैं कि जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। और जो नए रिटर्न्स ऑलरेडी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी है, जो कि पोस्टपोन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, और ई इनवॉइस गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं, वो सभी एक्शन इसी डायरेक्शन में है कि 2A से आगे क्रेडिट मिलने बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे 26 AS के बेस पे ऑटोमेटिकली हमें क्रेडिट मिलता है, चाहे भले ही हम कितना ही क्रेडिट क्लेम कर लें, लेकिन ITR CPC प्रोसेस करते वक्त 26 AS से उठा के हमें क्रेडिट देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है। सेम 2A से क्रेडिट मिलेगा, 3B में हम जो मर्जी क्लेम करते रहें, ये चीज बहुत जल्दी अबेंडन होने वाली है। मोहित अरोड़ा जी, आप अपने एंड पे चेक करो, वॉइस नॉट क्लियर का सिग्नल आ रहा है आपका। सो 2A से मैच करने की आदत इसी साल से हमें डाल लेनी चाहिए। 31 मार्च 2020 वुड बी वेरी प्रोन फॉर दिस पर्पस। तो इसलिए आज अगर हम इसको रिकंसिलेशन को बनाते हैं तो हमें कम से कम अपनी वीकनेसेस का और चैलेंजेस का पहले ही पता लग जाएगा, जिसकी रेमेडी आज हो सकती है रिटर्न में। रिटर्न फाइल करने के बाद रेमेडी करोगे तो गवर्नमेंट की नजरों में उजागर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, whether the credit of ITC reflecting in Form GSTR2A matches with that of being claimed by us in our books of accounts। हमारे क्रेडिट 3 जगह रिफ्लेक्ट होते हैं, एक 2A के अंदर, एक 3B के अंदर और एक बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। इन तीनों को हमें एक पैरेलल लाइन पे लेके आना है और तीनों को मैच करना है। और अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के साथ बैठ के हमें इसका ऐसे रिकंसिलेशन बनाना है जैसे हम अपने कस्टमर्स और वेंडर्स का रिकंसिलेशन करते हैं। तो कस्टमर्स और वेंडर्स का जब रिकंसिलेशन करते हैं तो कई बार क्या पता लगता है, अरे ये बिल तो इसका नहीं था, इसका था, इधर चढ़ गया, उधर चढ़ गया, ठीक है, ये पेमेंट 5,000 में थी, ये 50,000 थी। तो इस तरह की बहुत सारी एरर्स का पता लगता है जो कंपनसेटरी एरर्स होती हैं, जो जब तक रिकंसाइल ना करें तब तक पता नहीं लगता है। इसलिए इस चीज को भी हमें बहुत बारीकी से देखना है। आगे चलो, whether the turnover declared in all the forms GSTR3B are matching with that of the turnover declared in form GSTR1। इसका कारण क्या है कि बहुत सारी ऐसी टर्नओवर होती हैं जो हम 3B के अंदर कई बार नहीं दिखाते। उसका कारण कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं। जैसे कि फर्ज करो कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको
मान लो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बैठा है और वो डीटीए में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल करता है, तो फॉर द पर्पसेज ऑफ जीएसटी उसकी वो टर्नओवर नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में वो उसकी टर्नओवर आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे कुछ मिसमैचेस जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में हो जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग ओकेजन पे ये चीजें फाइल करी जाती हैं और ज्यादातर लास्ट डेट में फाइल की जाती हैं। ज्यादातर हम 19 या 20 तारीख को अपनी जीएसटीआर 3B भरते हैं और जीएसटीआर 1 कई बार पेनल्टी उस पर नहीं लगती है, तो हम आगे पीछे कर देते हैं और हम निर्भर होते हैं अकाउंटेंट लोगों पे। और इस रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे किसी प्रकार का चार्टर्ड अकाउंटेंट का या मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, वो रिलाय कर लेते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के ऊपर और इनमें काफी खामियां और गलतियां बाद में पकड़ी जाती है। इसलिए आज ही हमें इन दोनों के टर्नओवर की एक एक्सेल शीट में टेबल बना के इनको मैच कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, whether the balances reflecting in various credit ledgers are matching with that being reflecting in our books of accounts। यानी कि जो जीएसटीएन ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स बनाए हुए हैं, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर और कैश लेजर, उनके अंदर जो बैलेंसेस 31 मार्च के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और हमारी जो बुक्स के अंदर इन क्रेडिट लेजर्स के अंदर जो बैलेंसेस होते हैं उनमें भी वेरिएंसेस पाए जाते हैं। और वेरिएंसेस का कारण क्या होता है कि फर्स्ट करो कि मैं महाराष्ट्र गया और मैं एक होटल में स्टे किया और मैंने अपना टिन नंबर उनको दे दिया और उन्होंने टिन नंबर से मुझे इनवॉइस जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने CORS चार्ज किया वहां पे महाराष्ट्र का, उन्होंने IGST चार्ज नहीं किया, तो मेरे 2A के अंदर वो CGST आ जाएगा, लेकिन मैं उसे क्लेम नहीं कर सकता। तो कई बार इस प्रकार के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि मेरी बुक्स में तो वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो क्रेडिट जीएसटीएन के क्रेडिट लेजर में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो 3B के थ्रू जो क्रेडिट आते हैं, बुक्स में जो क्रेडिट हैं और जो जीएसटीएन पे क्रेडिट है, इन लेजर्स के अंदर हमें भली भांति उनका एक कॉलमनर फॉर्म में डिटेल बना लेनी चाहिए कि मेरे क्रेडिट लेजर्स ये हैं। इन क्रेडिट लेजर में CSI और कंपनसेशन सेस इसके हेड्स बना लेने चाहिए, ऐसी कैश का बना लेना चाहिए अलग अलग हेड्स में, और उनके बैलेंसेस को हमें अलग अलग चीजों से अपने बुक्स वगैरह से टैली कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, whether the accounts of various suppliers and vendors have been duly reconciled to plug any missing invoices to be accommodated in these returns। अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है कि अभी तो हम फटाफट अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं, हमें ये डर रहता है कि कहीं इंटरेस्ट ना लग जाए, और बाद में जब सितंबर में ऑडिट होता है तब हम अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को रिकंसाइल करते हैं, और उस वक्त फिर बहुत सारे घोटाले निकलते हैं कि ये इनवॉइस रह गया, उससे इनवॉइस नहीं आया, उसने डुप्लीकेट दे दिया, इसका ये 2 बार चढ़ गया। इस तरह के सारे जो भी वेरिएंसेज होते हैं, फिर हम उनको पता है क्या सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, अब अगले साल देखेंगे, और वो अगला साल कभी आता नहीं है और वो गलतियां कॉन्टिन्यूअस फ्लोट करती रहती हैं, और उसकी वजह से काफी पेमेंट्स का भी डिस्प्यूट्स होते हैं कि वेंडर्स कहते हैं कि आप ये ने हमारा बिल क्यों नहीं चढ़ाया, हमें क्रेडिट नहीं मिला, हमारे ये वो, इस तरह के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से उन बिलों की पेमेंट्स पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और उस टाइम पे बिजनेसमैन की मजबूरी होती है कि वो अपने अकाउंटेंट को भी और हमारी सर्विसेज को भी कंडेम करता है, अपनी गलती वो कभी मानता नहीं है। इसलिए आज हमें एक मेल शूट करनी चाहिए एसएससी को कि भाई ये रिकंसिलेशन मुझे करने हैं बिफोर आई फाइल द GSTR 1 एंड GSTR 3B, ताकि कल को जब वो सितंबर में हमें ब्लेम करे तो हम उसको ये दिखा दें कि देखो हमने पहले ही आपको ब्लैक एंड व्हाइट में राय दी हुई है कि आपको ये सारे रिकंसिलेशन करके ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी। Whether all the DMCN have duly been issued and been accounted for। नॉर्मली बिजनेसमैन आज की डेट में क्या मिस्टेक कर रहा है कि जो टारगेट इंसेंटिव्स होते हैं उसके DMCN वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स के थ्रू देता है, तो अभी तो उसके पास डिसाइड करने का टाइम नहीं है कि मुझे कितने DMCN देने हैं, तो वो इनको नॉर्मली जुलाई अगस्त सितंबर में जाके इशू करता है, और फिर हम उसको ये राय देते हैं कि भाई अब तो साल निकल गया, रिटर्न चली गई, इसलिए अब इनको तो करंट ईयर में ही डाल दे। तो दीज एक्सपेंसेस परटेन्स टू अर्लियर ईयर। तो कल को अगर हमारा इनकम टैक्स में केस लगता है तो भी हमें दिक्कत,
कि whether expenses pertaining to earlier year have been claimed during the current year, हमारा फॉर्म 3CD भी इस रिपोर्ट को मांगता है। और जीएसटी के अंदर जब हम फॉर्म 9 और 9C बनाते हैं वहां ये रिपोर्टेबल पार्ट बनता है। तो हर एंगल से एक विशियस सर्कल में हम एंटर कर जाते हैं अगर हम अपनी मार्च की रिटर्न को कैजुअली फाइल करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें 24 जून से पहले पूरी करके और एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन क्वालिटी की GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करनी है। मैं अभी सभी ये जो 24 जून की डेट है 5 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर्स के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। इनके लिए GSTR 1 भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून है और जो 3B भरने की डेट है वो 24 जून है। तो इस डेट को हमें एक ऐसा यार्डस्टिक बनाना है कि बाकी जो 5 करोड़ से नीचे और 1.5 करोड़ से नीचे वाले हैं उसमें भी ज्यादा अधिक समय नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 30 जून तक है बस मैक्सिमम। अलग अलग डेट्स हैं, 29 जून, 30 जून, 27 जून, इस तरह की डेट्स हैं। तो कुल मिला के 24 जून से लेके और 30 जून तक हमें GST वीक सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से हमें करनी शुरू करनी पड़ेगी। और इस बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि वेदर दिस डेट वुड फर्दर बी एक्सटेंडेड। आई कैन गेस फॉर माय ओन स्वीट विल कि जो 24 जून की डेट 5 करोड़ से ऊपर वालों की है वो डेट नहीं बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। और जो छोटे व्यापारियों की डेट है 1.5 करोड़ से नीचे वाले, उनकी डेट बढ़ने की संभावना है। और 5 करोड़ वालों की से जो नीचे है 1.5 करोड़ से ऊपर, उनकी डेट बढ़ने की संभावना 50-50 है। यानी कि बढ़ेगी भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन 1.5 करोड़ से नीचे वालों की डेट सर्टेनली 1 महीना और बढ़ सकती है। आगे बढ़े, ई-वे बिल्स आ जाए। इस पे ई-वे बिल बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, इससे बड़ा सिंपल है कि अगर हम अपना ई-वे बिल वैलिडिटी पीरियड में माल नहीं पहुंचा हमारा, तो NN40 ने इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया है कि आपका ई-वे बिल जो आपने 20 मार्च से और 15 अप्रैल की डेट में जारी किया है, और इसकी वैलिडिटी भी तो बताओ ना कोमल, कब तक थी? सुशांत सर ऊपर है ना वैलिडिटी। वो तो ठीक है, वैलिडिटी इतने इतने दिन वाली वैलिडिटी है, लेकिन ये कब तक इशू की बात कर रहा है इसके अंदर ई-वे बिल में? जो ई-वे बिल 20 मार्च से 15 मार्च के बीच में एक्सपायर होंगे, उनकी ड्यू डेट 31 मई तक स्कैन कर दी गई है। ओके, अच्छा, पहले ये 3 अप्रैल की थी क्या? हाँ जी। ओके हाँ जी। ओके ओके, तो 31 मई तक इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई है। तो ई-वे बिल में गवर्नमेंट काफी लिबरल है, और ई-वे बिल सिर्फ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। इस पीरियड में वो डिटेंशन वाले केसेस भी नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि ये ऐसा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एरिया नहीं है जिसकी वजह से बिजनेसमैन को कोई लॉस होगा। एटलीस्ट इस एरिया में तो गवर्नमेंट काफी लिबरल है। तो ई-वे बिल्स जिन लोगों की एक्सपायर हो गए थे उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप लेट स्वेयर ई-वे बिल अपने इनवॉइस से कनेक्ट कर दो, दैट इज ओके। इस मामले में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसमें 2 नोटिफिकेशन आए थे, NN35 और एक NN40। इन 2 नोटिफिकेशंस ने काफी अच्छा रिलीफ इस मामले में दिया है। और इसमें हम लोगों ने काफी फेस किया है, क्या कहते हैं, काफी कॉल्स फेस की हमने एसएससीज की कि क्या करें, वहां माल रुक गया, वहां माल रुक गया, ये है वो, इस तरह काफी समस्याएं हमने फेस की हैं। उन सबके हमने आंसर यही दिए हैं कि अब आप जिस रूट से जा सकते हो उस रूट से चले जाओ, जहां माल बेच सकते हो वहां माल बेच दो। और उसके हमने वेरियस समाधान बताए उनको कि इस वाले इनवॉइस को आप कैंसिल कर दो, दूसरा इनवॉइस जारी कर दो। और मान लो आपका माल बठिंडा में रुका हुआ है, वहां से चंडीगढ़ जाना है, तो बठिंडा से चंडीगढ़ का दूसरा ई-वे बिल बना दो। और किसी प्रकार का इसमें अगर किसी का कोई डिफॉल्ट फिर भी हो गया है
तो उसका मैकेनिज्म हमने बताया कि सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि आप अपनी कंपल्शंस को मेंशन करते हुए एक मेल शूट कर दो ऑफिसर को कि हमारी ये इरेगुलरिटी ईवे बिल में हो गई है, इसको कोविड की वजह से वो किया जाए। और अगर नहीं भी करो तो फ्यूचर में जब कभी कोई एक्शन गवर्नमेंट करेगी तो इस पीरियड के अंदर शायद कोई भी अथॉरिटी किसी प्रकार का पेनल एक्शन नहीं लेगी। सबसे बड़ा सर क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि जो ईवे बिल इशू किए मार्च में जी 22 मार्च से जनता कर्फ्यू से लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो जी उससे पहले जो ईवे बिल इशू किए और माल मूवमेंट पे आया ही नहीं, और अभी या आया तो कहीं रास्ते में अटका पड़ा रहा और ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो ठीक उस है। सिचुएशन में बैलेंस शीट में क्या करना है? वो ईवे बिल तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन ठीक है। उन बिलों को क्या करना है? उसकी ओनरशिप ऑफ मटेरियल क्या है? उसको बिल को कैंसिल करना है, अगले साल में दोबारा नया इशू करना है, या क्या करना है? आएंगे उस पे, ये मुद्दा है आगे डिस्कशन पे। ठीक है सर। तो हाँ, तो ये चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर ठीक है माल सर। गुड्स इन ट्रांजिट हेल्ड अप हो गया तो उसको किस तरह से हमें वो करना है। मतलब हमने जो टॉपिक्स बनाए ना टोटल 12, राइट सर। उनका पर्पज ये है कि हम हर एस्पेक्ट को कवर कर दें। चलो बढ़े आगे। मैं थोड़ा सा हरीडली इसलिए चल रहा हूँ कि हर मेंबर की ना टाइम की सिग्निफिकेंस है, और अगर किसी मेंबर को, जैसे सतीश जी ने अभी ये इशू अराइज किया है, ऐसे आप यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। अदरवाइज आप लोग रिपीटेडली इस तरह के सेमिनार लेते रहते हो, व्हाट्सएप पढ़ते रहते हो, और काफी टाइम है इस वक्त इस तरह की नॉलेज गेन करने का। दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू कीप माय मोमेंटम अ लिटिल फास्टर। अब मैं रिटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, और मैंने रिटर्न्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। रिटर्न्स उन टैक्स पेयर्स की जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, उनकी रिटर्न्स जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है, और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है। इन 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम डिस्कशन करेंगे। पहली कैटेगरी, इसमें जो ओरिजिनल डेट है GSTR 3B भरने की वो 24 मार्च 20 है। फरवरी, सबसे ऊपर टाइटल देखो, फरवरी 20 की रिटर्न 24 मार्च तक जानी चाहिए। हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जोन्स बना दिए थे, एक साउथ का जोन है और एक नॉर्थ का जोन। हम लोग नॉर्थ के जोन में, हमें अब 3B मंथली 24 मार्च तक फाइल करनी है इस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर इस कैटेगरी में आती है। तो इस डेट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के 30 जून कर दिया। ठीक है जी। अब इसके साथ कंडीशंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें डेट्स पे ध्यान देना है। थोड़ा पीछे जाना। फरवरी के अंदर हमने सिर्फ 3B का जिक्र किया है और GSTR 1 का जिक्र नहीं किया है। GSTR 1 का जिक्र इसलिए नहीं किया है कि GSTR 1 इस कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स की क्वार्टरली जाती है, इसलिए फरवरी की उनकी GSTR 1 नहीं जाएगी। यहाँ हमें सिर्फ ध्यान देना है GSTR 3B के ऊपर। नेक्स्ट, अब जब मार्च की हम बात करते हैं तो हम GSTR 1 का भी जिक्र कर रहे हैं और GSTR 3B का भी जिक्र कर रहे हैं। तो GSTR 1 ओरिजिनली 30 अप्रैल तक जानी थी हमारी, मार्च वाली, उसकी जो न्यू डेट है वो 30 जून हो गई है। सामने हमने नोटिफिकेशन का हवाला भी दे दिया। और जो 3B रिटर्न है वो 24 अप्रैल तक जानी थी, वही 24 डेज के अंदर, उसकी लास्ट डेट 3 जुलाई 20 हो गई। तो दिस इज द डेट एक्सटेंडेड। अब एक दर्जा और आगे चलो, ये अप्रैल की रिटर्न है। अप्रैल में फिर हमने GSTR 1 का जिक्र नहीं किया। 24 मई 3B की ओरिजिनल डेट है, ये 6 जुलाई हो गई है। एक दर्जा और आगे चलो, मई की रिटर्न 24 जून तक जानी थी, ये अब 14 जुलाई तक जानी है। यानी कि गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ वालों बंदों की जो रिटर्न्स हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये सारी डेट एक्सटेंड कर दी है। उन सबका हमने यहाँ जिक्र कर दिया है। लेकिन यहाँ हाँ मई तक, सॉरी। और उसका क्या कहते हैं, कंडीशन क्या है वो नेक्स्ट पेज पे दिखाऊं। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट, it is mandatory that the above return should be filed within the extended period। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि डेट तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस डेट तक भी अगर रिटर्न फाइल नहीं करी ना तो 18% तो इंटरेस्ट लगेगा, और जो लेट फी की पर डे की पेनल्टी लगती है वो ओरिजिनल डेट से
और जिस दिन रिटर्न फाइल करी तब तक पूरी लग जाएगी। तो इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में वो एक लिया है एनेक्डोट कि 30 कंप्लायंसेस एंड 15 डेज कैसे पॉसिबल होगा। तो हमें एकदम से अलर्ट हो जाना है, और अलर्ट में सबसे पहला काम ये करना है कि हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना है कि लॉ क्या कहता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और वो ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, ताकि कल को किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे ना आए। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ना कि लेट फी और इंटरेस्ट तब वेव होगा जब रिटर्न टाइम से जाएगी। सर्टेनली क्या होगा कि 24 जून को सर्वर नहीं चलेगा, जो भी लास्ट डेट होगी उस पर सर्वर नहीं चलेगा, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती मानी जाएगी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर क्या प्रेशर आएगा कि भाई आज अगर रिटर्न नहीं गई तो पिछले 3 महीने का इंटरेस्ट और लेट फी हो जाएगी, और फिर अगर सिस्टम ने बिना लेट फीस के रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लास्ट डेट की इंतजार ना करें, अपना टारगेट 23 तारीख तक का रखें, और एज फार एज पॉसिबल बहुत ही क्वालिटी मेल ड्राफ्ट करके आप उसको व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, ईमेल पे उसके अंकल को, उसके पड़ोसी को, उसके बेटे को, उसके अकाउंटेंट को, उसके दादा को, सबको भेज दो। तो कोई फैमिली में ऐसा बंदा होगा जो उसी दिन उस रिटर्न का प्रोसेस स्टार्ट करा देगा। तो वो खाली अकाउंटेंट को या info@फलाना फलाना पे भेजने से काम नहीं चलेगा। शाम दाम दंड भेद सारी पावर लगा के एक अच्छी सी कम्युनिकेशन बना। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम 1.5 करोड़ से और 5 करोड़ के बीच वालों का जिक्र करेंगे। इस पहली वाली कैटेगरी में अगर किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यस कोमल, प्रोसीड। वंस अगेन सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, सिर्फ डेट्स थोड़ी सी डिफरेंट है कि जो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी कंप्लायंस मंथली होती है। जीएसटीआर 1 11 दिन के अंदर जानी होती है, और जीएसटीआर 3 भी 24 दिन के अंदर जानी होती है। जो डेट पहले 20 हुआ करती थी अब वो 24 हो गई है, और जो साउदर्न रीजन है उसके लिए ये डेट 22 तारीख हो गई है। तो ये न्यू डेट्स क्या हो गई कि 11 मार्च 2020 की जो डेट है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी वो 11 मार्च 2020 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और जो 3B की डेट है वो फरवरी की बढ़ के 24 मार्च से 29 जून हो गई है। सेकंड कैटेगरी में चलो नेक्स्ट मार्च के महीने में जो जीएसटीआर 1 11 अप्रैल तक जानी चाहिए थी उसकी डेट बढ़ के 30 जून हो गई है, और जो 3B 24 अप्रैल तक जानी थी उसकी डेट 29 जून हो गई है। तो ये पूरी स्लाइड आपको मिलेगी, पूरी पीपीटी आपको मिलेगी आपके रेफरेंस के लिए। इसका भरपूर कॉपी पेस्ट करके आनंद उठाएं और क्लाइंट को भेजें या एज इट इज भेज दें इन स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करके। नेक्स्ट, अप्रैल की रिटर्न में वही सेम 30 जून डेट हो गई है ओरिजिनल डेट से बढ़ के, और मई की रिटर्न 30 जून और 14 जुलाई हो गई है। यानी कि कुल मिला के 30 जून और 14 जुलाई तक हमें इस कैटेगरी के लोगों की कंप्लीट कंप्लायंस करनी है जीएसटीआर 1 एज वेल एज 3B। वंस अगेन क्वेश्चन क्या है कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट इट इज मैंडेटरी दैट द अबव रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड। ये सेंटेंस क्लाइंट को टेलीफोन करके समझाना है, वो लिखे हुए को पढ़ के नहीं समझेगा इस बात को। आगे चलो, अब 5 करोड़ से ऊपर वालों का जिक्र करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मामला इंटरेस्टिंग है। चलो, इसमें अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो जीएसटीआर 1 में कोई एक्सटेंशन नहीं है, और जीएसटीआर 3B में जो डेट है वो 20 मार्च से बढ़ के 24 जून हो गई है, जिसका कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। 24 जून, इसको रट लो, क्योंकि 24 जून तक एक ही काम नहीं करना है, बहुत सारे काम करने हैं। मार्च की रिटर्न दिखाओ जरा, मार्च की रिटर्न भी 24 जून तक जानी है, और जो जीएसटीआर 1 है वो 30 जून तक जानी है, और अप्रैल की रिटर्न भी 30 जून तक जानी है, अगला महीना खोल दो, और जो जीएसटीआर 1 है वो 30 जून तक जानी है कि नहीं, 24 जून से और 30 जून तक तकरीबन सारी डेट्स हैं। अब मई की दिखा दो, मई की
रिटर्न 27 जून तक जानी है, यानी कि आपको 5 करोड़ से ऊपर वाले डीलर्स की फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने की रिटर्न्स 27 जून तक इंक्लूडिंग जीएसटीआर 1 30 जून तक फाइल करनी है। बहुत ही मुश्किल काम है। इस पे फोकस करना है। ये जो स्लाइड में 5 करोड़ से ऊपर वालों की दिखा रहा हूँ, इस पे फोकस करना है। और बिजनेसमैन को मजा नहीं आता लेट रिटर्न फाइल करने, वो मजबूर है, उसका ऑफिस नहीं खुला है, उसका अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है, उसके पास वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी नहीं है। सो मेनी चैलेंजेस आर देयर। तो इसलिए हमें इस चैलेंज को 4 आवर्स पर डे एक्स्ट्रा वर्क करके मीट आउट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ वेवर ऑफ लेट फी एंड इंटरेस्ट इट इज मैंडेटरी दैट द अबव रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहता हूँ कि जो 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए हैं, उनके लिए सिर्फ 15 डेज का वेवर है। यानी कि जो रिटर्न 24 तारीख तक जानी है, उसमें 15 डेज और ऐड कर लो, तब तक आप अपनी 3B फाइल कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। उसके बाद 9% इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 24 जून तक। और अगर 24 जून तक भी हमने रिटर्न फाइल नहीं करी तो 18% इंटरेस्ट लगेगा और पूरे पीरियड का लगेगा। लेट फीस तो लगेगी, प्लस इंटरेस्ट पूरे उस 15 दिन का भी लगेगा जो स्टार्टिंग के अंदर आपने रिलीफ ले लिया। तो यानी कि ये जो 24 जून की से लेके और 30 जून तक का पीरियड है, ये कुछ ऐसा पीरियड आ रहा है कि इतनी मारामारी तो जब हमारी वो टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर, तब भी नहीं होती है जो अब की बार इस पीरियड में होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स की रिटर्न जानी है। अगर खाली 1 महीने की रिटर्न जानी होती तो आई वुड नॉट हैव स्पोकन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। अगर आपने 4 महीनों की रिटर्न फाइल करनी है और वो रिकंसिलेशंस के साथ करनी है तो इट इज ए बिग टास्क अहेड ऑफ अस। नेक्स्ट, टीडीएस और टीसीएस में अगर आपका किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट होता है तो एक NN35 है, नोटिफिकेशन 35, जिसका कि हम आगे चल के जिक्र करेंगे। इसमें सारी डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं 30 जून 2020 तक। यानी कि आपको जो काम 20 मार्च से और 29 जून तक करना था, तो 20 मार्च से 29 जून तक आपको कौन से काम करने थे कि टीडीएस और टीसीएस की आपकी मार्च की रिटर्न, अप्रैल की रिटर्न जानी थी। तो ये दोनों रिटर्न अब आप 30 जून तक फाइल करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट ने किसी को भी 30 जून से ऊपर जाने का अंदेशा नहीं दिया है, इसलिए 30 जून इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट। उसके बाद फिर वो आपके इंटरेस्ट वगैरह वो सब लगने स्टार्ट हो जाएंगे। 30 जून तक अगर जमा करा देते हैं टीडीएस और टीसीएस तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आगे चलो, इसमें वो कंडीशन नहीं है कि अगर 30 जून के बाद जमा कराया तो क्या होगा, इसमें वो नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न्स में ही है। ऑडिट जो भी 9C 9A वगैरह फाइल होने हैं कंपोजिशन डीलर के, या 9 की जो डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर, 9C की जो डेट होती है 31 दिसंबर, वो सब डेट वेट सब एक्सटेंड होके 18-19 की जो लास्ट डेट होगी वो 30 सितंबर 2020 होगी। तो 30 सितंबर 2020 कोई ऐसी डेट नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबी डेट हो, क्योंकि इसी पीरियड में हमारे टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं। तो ये डेट डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट की बढ़ जाएगी। इट शुड गो फर्दर अप टू 31 मार्च 21 एट लीस्ट। आगे चलो, एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी NN35 अप्लाई होता है अगर मान लो किसी ने LUT फाइल नहीं किया। LUT नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फॉर द होल ईयर हम फाइल कर देते हैं बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, या जब कभी हमें कोई एक्सपोर्ट करना होता है, फर्स्ट एक्सपोर्ट करना होता है, उससे पहले हम ये RFD 11 भर देते हैं कि ये हमारा टारगेट रहेगा इस पीरियड के अंदर। तो उसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया है। मतलब LUT तो एक ऐसी चीज है कि जिसको आप अगर पोस्ट फैक्टो भी फाइल कर दो तो भी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कल को अगर लिटिगेशन हो जाए तो असेसी अननेसेसरी हमारे को ब्लेम करेगा। इसलिए जिनके LUT अभी फाइल नहीं हुए हैं वो भी 30 जून तक करना है। नेक्स्ट,
रिफंड्स के अंदर भी ओरिजिनली 2 साल का टाइम होता है, चाहे भले ही हम एक्सपोर्टर्स हो, चाहे हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लेना हो. देयर आर ओनली फ्यू कैटेगरीज ऑफ रिफंड्स which do not fall within the category of 2 years. जैसे फर्ज करो कि हमें अपने कैश लेजर से रिफंड लेना है, वहां 2 साल की कोई कंडीशन नहीं. अगर मान लो मैंने अपील फाइल करी और उस पर स्टे अमाउंट जमा कराया, उसका रिफंड लेने के लिए कोई 2 साल की कंडीशन नहीं है. लेकिन अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड है और एक्सपोर्टर्स का रिफंड है और वो 2 साल का पीरियड आपका इस कोविड टाइम के अंदर फॉल कर रहा है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आप अवेल कर लो. उसके लिए गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा के 30 अप्रैल कर दी है, नहीं 30 जून कर दी है NN 35 के तहत. यानी कि NN 35 एक जनरल एक्सटेंशन है कि एनीथिंग विच इज हैपनिंग एंड कुड नॉट हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड आइदर फ्रॉम द असेसी साइड और फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर साइड, दैट वुड ऑटोमेटिकली गेट एक्सटेंडेड अप टू 30th जून एक्सेप्ट द फॉलोइंग. वो एक्सेप्ट द फॉलोइंग हम बाद में डिस्कस करेंगे. चलो, जॉब वर्क के अंदर भी क्या होता है कि विद इन 1 ईयर और विद इन 3 इयर्स की कंडीशन होती है कि अगर हमने कोई रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए भेजा है या कोई कैपिटल गुड्स प्रोसेसिंग के लिए भेजी है, तो उसके एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि इस पीरियड के अंदर वो चीजें वापस आ जानी चाहिए. और अगर वो लिमिटेशन पीरियड आपका एक्सपायर हो रहा है इस पीरियड के अंदर, तो NN 35 की शेल्टर में आपको 30 जून तक का टाइम दिया गया है. हो सकता है कि दोबारा से एक और NN 35 आ जाए और ये पीरियड 30 जून वाला 30 सितंबर हो जाए, तो वो उन चीजों के लिए होगा जिसमें गवर्नमेंट का रिवेन्यू इन्वॉल्व नहीं है. जैसे जॉब वर्क वाला हो सकता है, LUT वाला हो सकता है, ऑडिट की डेट बढ़ सकती है, ई-वे बिल्स में रिलैक्सेशन मिल सकता है. इस तरह के रिलैक्सेशन मिल सकते हैं हमें, लेकिन रिलैक्सेशन 3B के अंदर नहीं मिलेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ अपील. सेम रूल अप्लाइज कि NN 35 के तहत अगर आपकी कोई अपील फाइलिंग ड्यू थी, आप नहीं फाइल कर पाए, 30 जून उसकी अब लास्ट डेट है. इसकी डेट भी बढ़ सकती है अपील फाइल करने की, क्योंकि यहाँ रिवेन्यू इन्वॉल्व नहीं है. चलो, NN 35 का आप लास्ट में हम जिक्र करते हैं. इसको एक बार मैं वर्बैटिम पढ़ देता हूँ कि NN 35 क्या कहता है. इसके बाद हमारा ये सेशन कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद आप मेंबर्स के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसे हम लेंगे, अन्यथा हम आज की डेट में बाय बाय करेंगे. और मेरे को टारगेट दिया गया था कि 1-1.25 घंटे में सेमिनार को निपटाना है. अभी 5:17 हुए हैं. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 5 another 10 मिनट्स के अंदर हम सेमिनार को कंक्लूड कर देंगे, इंक्लूडिंग योर क्वेश्चन आंसर्स. सेक्शन 168A इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, which empowers government to extend time limits in respect of actions which cannot be completed or complied with due to natural events. ठीक है, ये मैं आपके लिए इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप इसको बिल्कुल याद कर लो कि हमें 35 का बेनिफिट लेना है. इट्स ए मास्टर नोटिफिकेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ limitations which are expiring during this period और any further extended period अगर होगा तो भी ये NN 35 हमें सपोर्ट करेगा. In this regard, time limit for completion of any action. Time limit for completion of any action. अभी एक्शन किसकी तरफ से हो रहा है, एसएससी की तरफ से हो रहा है या डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है? Which falls during the period 20 मार्च से 29 जून has been extended up to 30 June, but such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said act as mentioned below. यानी कि इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो इससे भी बड़ा पैराग्राफ है, उसे आप सेल्फ पढ़ लें इस नोटिफिकेशन के अंदर. उसके अंदर ये जो एनी एक्शन वर्ड है इसको एक्सप्लेन किया गया है कि एनी एक्शन में क्या क्या फॉल करता है. वो पैराग्राफ पढ़ना भी बहुत जरूरी है. अब हम एक्सेप्शन पे आ जाते हैं कि NN 35 किन किन चीजों पे अप्लाई नहीं होगा. सबसे पहले टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो मैंने आज माल डिलीवर किया, बेचा, तो मुझे उसका इनवॉइस आज ही जारी करना है.
मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो कोविड की वजह से मैं इनवॉइस जारी नहीं कर पाया। जब आप भाई आप माल बेच पा रहे हो, ट्रक में लोड करा रहे हो, आप यू मे बी डीलिंग इन एसेंशियल सर्विसेज और एनी अदर सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आपने इनवॉइस क्यों नहीं बनाया? तो गवर्नमेंट ने यहाँ रिलीफ नहीं दिया है। और सर्विसेज के केस में मान लो मैंने 25 या 20 मार्च को एक अटेस्टेशन किया, सर्टिफिकेट दिया, 15 CA वगैरह दिया, उसका इनवॉइस मुझे विद इन 30 डेज बनाना है। और विद इन 30 डेज कंप्लीट हो गए 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को लॉकडाउन है, लेकिन मुझे 20 अप्रैल से पहले वो इनवॉइस बनाना है, इसमें छूट नहीं है। तो इस प्रकार की जो सर्विस इंडस्ट्री है अक्रॉस इंडिया, वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है इससे, और उसमें वो फोर्स मुजारे वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो काम आ सकता है रिलीफ लेने के। मैंडेटरी ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, मान लो किसी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो गई और वो कहने लगा जी मुझे तो 27 मार्च को ये पता लगा कि मेरी टर्नओवर एक्सीड हो गई, तो उसके पास ये ऑप्शन तो है कि वो 30 जून तक रिक्विजिट फॉर्म्स भर दे, लेकिन लायबिलिटी उसकी 28 तारीख से हायर रेट पे स्टार्ट हो जाएगी, 18% पे या 12% पे, जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा, उससे वो नहीं बचेगा। इस पे गवर्नमेंट ने कोई छूट नहीं दी है। ठीक है, नेक्स्ट सी रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो मैं कोई माल सप्लाई कर रहा हूं और मेरी थ्रेशोल्ड 20 लाख या 40 लाख से ऊपर क्रॉस हो गई है, तो मुझे विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, इसमें भी कोई छूट नहीं। अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं और मुझे कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो वो मुझे लेना पड़ेगा। उसके बिना आपको कोई छूट नहीं है कि आप टैक्स इनवॉइस जारी कर दो या कुछ कर दो। यानी कि 25 और 27 पे ये 35 अप्लाई नहीं होता है टैक्स इनवॉइस। सेम जो मैंने स्टार्टिंग में टाइम एंड वैल्यू से रिलेटेड बताया था, इसी प्रकार से सेक्शन 31 बात करता है इशुएंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इनवॉइसेस। तो उसमें भी आप ये प्ली नहीं ले सकते कि सर मेरे को कोविड की वजह से मैं इनवॉइस जारी नहीं कर पाया। तो या तो आप बिजनेस कर रहे हो तो इनवॉइस भी जारी करो, बिजनेस नहीं कर रहे हो तो फिर तो भगवान के भरोसे। GSTR 1 सेक्शन 37, यानी कि ये नोटिफिकेशन GSTR 1 पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि GSTR 1 की डेट सेपरेट नोटिफिकेशन के अंडर बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो जनरल नोटिफिकेशन के अंदर GSTR 1 फॉल नहीं करेगी। देन कम्स लेट फीस। सेक्शन 47 लेट फीस की बात करता है, वो भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है, क्योंकि दैट इज बीइंग कवर्ड अंडर स्पेसिफिक सेक्शन नोटिफिकेशन। इसी तरह से इंटरेस्ट की जो लेवी है उस पे भी ये जनरल नोटिफिकेशन काम नहीं करेगा, वो भी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया है। इसी तरह से अरेस्ट प्रोविजंस के ऊपर भी ये एमएन काम नहीं करेगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के ऊपर भी ये एमएन काम नहीं करेगा। पेनल्टी 122 में जो लगनी है उस पे भी ये कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और डिटेंशन ऑफ व्हीकल 130 में जो फॉल करती हैं, क्योंकि इसेंशियल सर्विसेज के अंदर भी व्हीकल्स मूवमेंट अलाउड है, और उन्हीं व्हीकल्स में आप नॉन इसेंशियल कमोडिटी भी अगर लेके जा रहे हो तो गवर्नमेंट को आपकी व्हीकल को डिटेन करने की पूरी पावर है। नेक्स्ट GSTR 3B फाइलर्स, यानी कि सेक्शन 39 में जो GSTR 3B फाइल होनी है उसके ऊपर भी NN अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि GSTR 3B की जो डेट्स हैं गवर्नमेंट ने सेपरेट नोटिफिकेशन में बढ़ा दी हैं। इसी तरह से सेक्शन 68 में इंस्पेक्शन इन रिलेशन टू ई-वे बिल से रिलेटेड भी यहाँ पे कवरेज नहीं होगी। अगर आपकी कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी इंस्पेक्शन हो सकती है। ऑल्सो वेयर एन ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 of the Central Goods and Service Rules and its period of validity expires during the period 20 मार्च से 15 मार्च। validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till 30th day of April 2020। यानी कि कुल मिला के इस 35 को सभी मेंबर्स ने
अपने सामने रख के एक बार पढ़ना है और इसको एनालाइज करना है कि ये 35 क्या कहता है, किस किस चीज में छूट देता है। अभी हमने यहाँ कंप्लीट उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया है स्पेस पाउसिटी की वजह से। और with this Komal is hinting us to say thank you sir. So now I welcome if there is any question. सर आप Q&A एक्सेस कर पाएंगे, मैं पढ़ूं प्लीज? हाँ जी, Q&A नीचे आ रहा है एक विंडो Q&A, उसमें सारे क्वेश्चन है। ओके, या मैं पढ़ दूं? ना आगे मेरे सामने सर, आजकल तो ठीक है, सारे दिन यही काम चलता रहता है। लास्ट डेट फॉर February GST returns. ऑलरेडी आंसर्ड। Whether this member is already having the answer question of this. मुझे लगता है ये 5 करोड़ से ऊपर वालों की फरवरी की रिटर्न की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। और इस बारे में मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले में इम्यून है एज फार एज नोटिफिकेशन इज कंसर्न्ड। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली इसलिए अराइज हो रही है कि जब गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी करी थी तब उन्होंने फरवरी की रिटर्न्स का भी जिक्र किया था। उन्होंने उसमें लैंग्वेज जो यूज की थी वो ये थी कि द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई। उसकी इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने ये निकाली कि मार्च के अंदर तो फरवरी की रिटर्न फाइल होती है, and we assumed that February return also got extended। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि उसकी डेट तो 11, ये GSTR1 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी डेट तो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डेट दैट इज 11th ऑफ मार्च को निकल चुकी है। तो इसमें आप लोग बस ये शेल्टर ले सकते हो कि आप फाइल कर दो अभी, क्योंकि काफी लोगों ने फरवरी की GSTR1 फाइल नहीं करी है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक, सीतारमन जी के लेवल तक भी काफी ट्वीट्स आए गए थे। और ये पॉइंट गवर्नमेंट की काफी अच्छी नॉलेज में है, तो वो GSTR1 पे किसी प्रकार की लेट फीस नहीं लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कपिल भारद्वाज जी का, GSTR4 एंड CMP8 आर सेम फॉर्म। नहीं सर, ये सेम फॉर्म नहीं है। CMP08 इज इक्वल टू 3B एंड GSTR4 इज इक्वल टू GSTR1। ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल बजाज जी का है, एन एक्सपोर्टर फाइल्स हिज फॉर्म GSTR3B on the basis of purchases made, but when 2A for the same period comes, it finds certain people have not filed return, therefore both will not match. What happens in this case? सर ये पॉइंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूं केवल जी कि गवर्नमेंट आने वाले समय में सिर्फ वही क्रेडिट देगी जो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हुए हैं। और एज फार एज एक्सपोर्टर्स एंड इनोवेटिव ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड्स आर कंसर्न, उस पे तो गवर्नमेंट ऑलरेडी रूल अमेंड कर चुकी है कि the refund would be allowed only to the extent which is reflecting into 2A। इस बात पे अब कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसलिए आपको रिफंड जो है सिर्फ उस एक्सटेंट तक मिलेंगे जो आपके 2A में आ चुके हैं। सुनील जैन जी, हाउ टू एडजस्ट अनक्लेम्ड अनएलिजिबल क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिट लेजर। हाउ टू एडजस्ट अनक्लेम्ड इनएलिजिबल क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिट लेजर। सर इनको एक्सपेंस ऑफ करना होता है। आपके क्रेडिट लेजर में फर्ज करो कि कार का क्रेडिट आ गया या फूड का क्रेडिट आ गया, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने उसको टिन नंबर दे दिया और वो क्रेडिट फर्ज करो कि आपके 2A के अंदर आ गया, ठीक है, और वो आपके बुक्स में चल रहा है। या मान लो आपने गलती से कोई 3B के अंदर क्लेम कर लिया, तो उसको सब्सिक्वेंट पीरियड में रिवर्स कर दो। और जो इनएलिजिबल क्रेडिट्स होते हैं उसके लिए हम लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक हेड ऑफ अकाउंट खोलो जिसमें आप ये स्पेसिफिकली लिखो इनएलिजिबल GST इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, ताकि ऑडिटर्स को भी, आपको खुद को भी और गवर्नमेंट को भी ये पता लग जाए कि आपने कितने क्रेडिट खुद अपने बुक्स में डिसअलाउ किए हुए हैं। आपने देखा होगा पहले जब हम असेसमेंट कराते थे सेल टैक्स में या एक्साइज में या कस्टम्स में, और जो लेवी लगती थी एडिशनल,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, उसे हम जमा कराते थे। तो उसके लिए हम एक हेड ऑफ अकाउंट खोल के चलते थे, एडिशनल सेल्स टैक्स पेड और एक्साइज ड्यूटी वगैरह तो सब P&L अकाउंट में डेबिट होती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ए लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर विच इज अलाउेबल। तो यहाँ पे मेंबर्स का कई बार क्वेश्चन आता है कि वेदर पेनल्टीज ऑल्सो, आंसर इज नो, penalties are not allowable as a legitimate expenses under section 37 of the income tax act. Therefore penalties should be separately dealt with and they should be disallowed while filing the ITRs returns. ये क्वेश्चन हो गए सर, और तो कुछ थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। हाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ सर, 8 क्वेश्चन है। Can an application for surrender of registration be filed up to 30th June 2020 to be made effective from 1st 1/4/2020 taking benefit of NN 35? Certainly. NN 35 is applicable on section 29 which talks about cancellation. It is only section 25 which talks about registration and section 27 which are covered under 30 which are not covered under 35, but cancellation provisions are not covered. Therefore you can apply for cancellation up to 30th June with a back date. सुनील बवेजा जी का क्वेश्चन था ये। दीप कुमार जैन जी पूछ रहे हैं, इन विच मंथ ITC will be eligible for material dispatched in March 20 but actually received in May 20? ये तो सेक्शन 16 की कंडीशंस ही कहती हैं कि जब तक आपको एक्चुअल माल ना मिल जाए, ठीक है। सतीश गोयल जी का क्वेश्चन भी हम यहाँ कवर कर देंगे कि जब तक कि आपको एक्चुअल माल ना मिल जाए तब तक आपको क्रेडिट नहीं लेना है। तो जिन पार्टीज ने माल डिस्पैच कर दिया, मान लो महाराष्ट्र से, और वो माल दिल्ली आना है और वो माल रास्ते में स्ट्रक अप हो गया, तो महाराष्ट्र वाली पार्टी तो क्या करे उसका, और दिल्ली वाली पार्टी क्या करे, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेज पे हम काफी एक डिटेल डिस्कशन करते हैं जिसमें आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और GST लॉ को डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तब जाके हम इसका समाधान एक नॉर्मल कोर्स में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उस डिस्कशन को ना करके सिर्फ कोविड पीरियड में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी सिर्फ मैं बात करूंगा कि मान लो 25 मार्च को महाराष्ट्र से माल चला और वो माल आके गुजरात में अटक गया और वो अभी तक नहीं आया, तो महाराष्ट्र की पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसको अपने यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक में ले ले, गुड्स लाइंग इन गुजरात इन ट्रांजिट, और उसको अपनी सेल रिवर्स कर ले। और जब कभी वो माल वहां से दोबारा चलेगा और दिल्ली पहुंचेगा, तब उसका दोबारा से करंट पीरियड में इनवॉइस जारी कर दे ताकि उसकी लायबिलिटी मार्च में अराइज ना हो। एज फार एज बायर इज कंसर्न्ड, बायर के पास तो ये राइट है ही कि जब तक उसके गुड्स उसकी परमिसेस पे ना जाएं तब तक वो उसकी किसी प्रकार की एंट्री परचेज में या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के लिए ना करे। इस प्रकार की जो ज्यादा क्वेरीज हमारे पास आई हैं वो इंपोर्टर से रिलेटेड आई है। जैसे इंपोर्टर के केस में क्या होता है कि एक बंदे का मान लो ICD पे माल आ गया, उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके माल छुड़वा लिया और IGST पे कर दिया इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन उसका माल उसकी फैक्ट्री में पहुंचने में डिले हो गया, तो क्या उसको जिस महीने में उसने IGST पे किया है उस महीने में क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर इज नो। जब उसका माल वो इंपोर्ट का उसकी फैक्ट्री में पहुंच गया, क्रेडिट तभी मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 16(2) इस मामले में बहुत क्लियर है। दीप जैन जी का दूसरा क्वेश्चन है, रूल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ITC टू 10% as appearing in 2A will not apply for March, April, May, June, July returns or August is also covered. दीप जैन जी, इसमें फरवरी से लेके और अगस्त तक का पीरियड कवर्ड है जो कि पोस्टपोन हो गया है। ये हम ऑलरेडी अपनी स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं। आपको इन सारे महीनों का हिसाब गवर्नमेंट को सितंबर 2020 में फाइनली देना है। एनी इंटरेस्ट इफ ITC claimed is in excess of the rule 10% and reconciled in September, answer is once again no interest would be levied, which I have already answered। कि इस पे जब आप सितंबर के अंदर अगर मान लो आपको किसी प्रकार का रिवर्सल करना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ फरवरी टू अगस्त,
तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही डेट बढ़ाई है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मोहित जी का क्वेश्चन है, इन एलयूटी ओल्ड एलयूटी टू बी मेंशन्ड ऑन ऑल सप्लाईज बिटवीन सच पीरियड। एक सेकेंड। इन एलयूटी ओल्ड एलयूटी टू बी मेंशन्ड ऑन ऑल सप्लाईज बिटवीन सच पीरियड, डेफिनेटली। अगर आप बिलेटेड एलयूटी सबमिट कर रहे हैं मान लो 30 जून तक, और अगर आपने अप्रैल, मई और जून में किसी प्रकार का भी एक्सपोर्ट किया है, उन सबके लिए आपने उस एलयूटी को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन जी का, वेदर जीएसटी रिफंड कैन बी टेकन फॉर कैपिटल गुड्स। देखो चर्चा इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड है कि आप विद एलयूटी एक्सपोर्ट कर रहे हो या आईजीएसटी पे करके कर रहे हो, तो अभी मैं सिर्फ इतना आंसर दूंगा, इफ यू आर पेइंग आईजीएसटी एंड क्लेमिंग रिफंड ऑफ कैपिटल गुड्स, आंसर इज यस, बट इफ यू आर एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट एलयूटी, देन आंसर इज नो। For detailed discussion, we can separately discuss, because this is not the platform to discuss about the refunds. I think QA are over, sir. Thank you. And sir, they're over, and we are well within time. Thank you, Virender ji, and thank you, Komal ji, for this nice deliberation. And number one, basically the 1 dozen questions, focal points are very critical for us. The RECOs, ITCs, and basically we have to hammer again and again, भैया 24 जून से पहले सब कर लो, नहीं तो सारा लायबिलिटी 3 महीने की ब्याज की और आपकी लेट फाइलिंग की सबकी आपके सिर पे आ जाएगी और क्यूमुलेटिव हो जाएगी। सर थैंक यू वेरी मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर सेशन विद यू सून। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सतीश जी, thank you for your kind presence. Thank you, sir. Thank you. ऐसे बड़े बड़े लोग आ जाते तो पूरी शान बढ़ जाती है पूरे Sir, I am obliged. So Kohli साहब, I am once again thankful to you for inviting me and looking forward to be part of this. Always our pleasure, sir. Yes, I am fortunate to be here again and again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Komal, for a very brilliant PPT. Thank you, And sir. it made me quite easy to explain everything the way you have presented. Your Sir, we are scripts looking are- forward to sharing your PPT so we can distribute to our members. कोमल, अभी ये पीपीटी आप राजेश अग्रवाल जी के उस पे भेज दो, आपके पास है मेल आईडी? जी। उनकी अभी मेल आई थी ना जूम के लिए, हाँ। उस पे भेज दो। राजेश अग्रवाल जी रीडिफ पे है, इतना देख लेना। ठीक है। ठीक है, आप सीसी मुझे कर देना, मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, नहीं तो एक अर्लियर मेल उनकी 9 मई को आई थी पिछले महीने, आज 8 जून है, 9 मई को भी हमने एक सेमिनार लिया था, तब भी उनकी एक मेल आई थी और उसमें हमने पीपीटी भी भेजी थी। उसी के ऊपर आप ये पीपीटी भेज दो। ठीक है सर। ठीक है कोहली साहब, मेरी मेमोरी ठीक है ना? बिल्कुल सर, फर्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। Thank you, sir.